दोस्तों, जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत। मैं आपकी दोस्त संध्या मैम। आज मैं बात करूंगी कॉन्स्टिट्यूशंस आर्टिकल 273 एंड 274 एंड 273 के बारे में। आज मैं इन दोनों अनुच्छेदों को पढ़ूंगी। 273 article says about the grants in lieu of export duty on jute and jute products. अनुच्छेद 273 कहता है जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान देने की बात करता है। जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान देने की बात करता है जिन राज्यों में जूट उत्पादन होता है, यानी उनको अनुदान भी दिया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन हो इन चीज़ों का और उनका एक्सपोर्ट हो। 273 article says grants in lieu of export duty on jute and jute products. Number 1, there shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants in aid of the revenues of the states of Assam, Bihar, Odisha and West Bengal in lieu of assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty on jute and jute products to those states such sums as may be prescribed. दोबारा पढ़ देती हूँ। 273 says about the grants in lieu of export duty on jute and jute products. Number 1, there shall be charged on the Consolidated Fund of India in each year as grants in aid of the revenues of the states of Assam, Bihar, Odisha and West Bengal in lieu of assignment of any share of the net proceeds in each year of export duty on jute and jute products to those states such sums as may be prescribed. Number 2, the sums to prescribed shall continue to be charged on the Consolidated Fund of India so long as any export duty on jute or jute products continues to be levied by the Government of India or until the expiration of 10 years from the commencement of this Constitution, whichever is earlier. Number 3, in this article, the expression prescribed has the same meaning as in Article 270. 274 article says about the prior recommendation of President required to bills affecting taxation in which states। क्या कहा जा रहा है 274 अनुच्छेद में कि ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितवद है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा, यानी जो उनकी पूर्व सिफारिश है उनकी अपेक्षा की बात की जा रही है। 274 article says prior recommendation of President required to bills affecting taxation in which states are interested. Number 1, no bill or amendment which imposes or varies any tax or duty in which states are interested on which varies the meaning of the expression agricultural income as defined for the purposes of the enactments relating to Indian income tax or which affects the principles on which under any of the foregoing provisions of this chapter monies are or may be distributable to states or which imposes any such surcharge for the purposes of the Union as in mentioned in the foregoing provisions of this chapter shall be introduced or removed in either House of Parliament
except on the recommendation of the President. Number 2, in this article, the expression tax or duty in which state are interested means A. A tax or duty, the whole or part of the net proceeds whereof are assigned to any state, or B. A tax or duty by reference to the net proceeds whereof sums are for the time being payable out of the consolidated fund of India to any state. अब मैं इसको हिंदी में पढ़ लेती हूँ दोनों अनुच्छेदों को कि दोनों अनुच्छेदों में क्या कहा जा रहा है। अनुच्छेद 273, अनुच्छेद 273 में कहा जा रहा है कि जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के स्थान पर अनुदान। नंबर 1, जूट और जूट उत्पादों पर जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम का कोई भाग असम, बिहार, उड़ीसा और पश्चिमी बंगाल राज्यों को सौंप दिए जाने के स्थान पर उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जाएंगी जो विहित की जाएं। क्या कहा जा रहा है? जूट और जूट उत्पादों पर निर्यात शुल्क के प्रत्येक वर्ष के शुद्ध आगम का कोई भाग असम, बिहार, उड़ीसा, पश्चिमी बंगाल राज्यों को सौंप दिए जाएंगे, क्योंकि इन्हीं राज्यों में सबसे ज़्यादा जूट उत्पादन होता है। तो इसीलिए इन राज्यों को, उन राज्यों के राजस्व में सहायता, यानी उन राज्यों के जो राजस्व हैं उनमें वृद्धि करने के लिए जो केंद्र सरकार है, जो संघ है, वो क्या करेगा? उन राज्यों के राजस्व में सहायता अनुदान के रूप में प्रत्येक वर्ष यानी प्रत्येक साल भारत की संचित निधि पर ऐसी राशियां भारित की जाएंगी, यानी उन संचित निधि से उनको उनके राज्यों के जो राजस्व हैं उनमें उनको अनुदान दिया जाएगा ताकि उनके राजस्व में वृद्धि हो। तो ये काम किसका है? यूनियन, संघ का। तो ये संघ क्या करेगा? इन राज्यों को अनुदान भी देगा उनके राजस्व को बढ़ाने के लिए। तो ये बात कही जा रही है, और वो भारत की संचित निधि से उस अनुदान को दिया जाएगा और संचित निधि पर ही ऐसी राशियां जो ग्रांट्स से लेकर हैं वो भारित की जाएंगी, जो विहित की जाएं। अनुच्छेद 2, जूट या जूट उत्पादों पर जब तक भारत सरकार कोई निर्यात शुल्क उद्ग्रहित करती रहती है तब तक या संविधान के प्रारंभ से 10 वर्ष की समाप्ति तक इन दोनों में से जो भी पहले हो, इस प्रकार विहित राशियां भारत की संचित निधि पर भारित बनी रहेंगी। अनुच्छेद 3, इस अनुच्छेद में विहित पद का वही अर्थ है जो अनुच्छेद 270 में है। क्या कहा जा रहा है कि इसका संबंध या इसका अर्थ वही है जो अनुच्छेद 270 में बताया गया है, उसी के अनुसार होगा। अनुच्छेद 274 में कहा जाता है कि ऐसे कराधान पर जिसमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश की अपेक्षा। नंबर 1, कोई विधेयक या संशोधन जो ऐसा कर या शुल्क जिसमें राज्य हितबद्ध है, जिसमें राज्य का हितबद्ध है, जिसमें राज्य का इंटरेस्ट है, यानी जो इंटरेस्ट है, तो ऐसा कर या शुल्क अधिरोपित करता है या उसमें परिवर्तन करता है, अथवा जो भारतीय आयकर से संबंधित अधिनियमितियों के प्रयोजनों के लिए परिभाषित कृषि आय पद के अर्थ में परिवर्तन करता है, अथवा जो उन सिद्धांतों को प्रभावित करता है जिनसे इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में से किसी उपबंध के अधीन राज्यों को धनराशियां वितरणीय हैं या हो सकेंगी, अथवा जो संघ के प्रयोजनों के लिए कोई ऐसा अधिभार अधिरोपित करता है, तो इस अध्याय के पूर्वगामी उपबंधों में वर्णित है, संसद के किसी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। तो अनुच्छेद 274 में कहा जाता है कि ऐसे कराधान जिनमें राज्य हितबद्ध है प्रभाव डालने वाले विधेयकों के लिए राष्ट्रपति की पूर्व सिफारिश ली जाएगी। उनकी सिफारिश
के बिना यानी राष्ट्रपति की सिफारिश के बिना सदन में, संसद के किसी भी सदन या राज्यसभा या लोकसभा यानी किसी भी सदन में राष्ट्रपति की सिफारिश पर ही ये विधेयक प्रस्तावित किए जाएंगे, अन्यथा नहीं। अनुच्छेद 2, इस अनुच्छेद में ऐसा कर या शुल्क जिसमें राज्य हितबद्ध है, ऐसा शुल्क या शुल्क जिसमें राज्य हितबद्ध है पद से कोई कर या शुल्क अभिप्रेत है, नंबर का, जिसके शुद्ध आगम पूर्णता या भागता किसी राज्य को सौंप दिए जाते हैं। उनके जो पूरे जो संपूर्ण जो शुल्क हैं जो राज्यों के हित में हैं या राज्यों को फायदा पहुंचाते हैं, उनके राजस्वों को बढ़ाते हैं, राज्यों के राजस्वों के घाटे की भरपाई भी करते हैं। तो इसीलिए बात की जा रही है जिसके शुद्ध आगम पूर्णता या भागता किसी राज्य को सौंप दिए जाते हैं, या नंबर खा, जिसके शुद्ध आगम के प्रति निर्देश से भारत की संचित निधि में से किसी राज्य को राशियां तत्समय संदेह हैं। तो का और खा मतलब किसी भी राज्य को सौंप दिए जाते हैं ये शुद्ध आगम, पूर्णता या भागता पूरी तरह से, या भागता किसी राज्य को सौंप दिए जाते हैं, या नंबर खा, जिसके शुद्ध आगम के प्रति निर्देश से भारत की संचित निधि से, जो भारत की संचित निधि है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, उसकी बात की जा रही कि किसी भी राज्य को राशियां उसकी भारत की संचित निधि से भी देने का अधिकार है संघ को। और ये सब क्या होगा, राष्ट्रपति की सिफारिश के बाद ही ये सब कर और शुल्क प्रस्तावित किए जाएंगे सदन के किसी यानी संसद के किसी सदन में, या राज्यसभा हो या लोकसभा हो। तो ये बात की जा रही है। कल मैं पढ़ूंगी 275 अनुच्छेद, कुछ राज्यों को संघ से अनुदान, कुछ ऐसे राज्य भी हैं जिनको संघ से अनुदान दिया जाएगा, ये अनुच्छेद कहता है। इसके लिए ये कानून बताता है कि ऐसे कुछ राज्य हैं जिनको अनुदान देना संघ का अधिकार होगा, उनकी ड्यूटी होगी। जो गरीब राज्य होंगे है ना, तो उनको तो देना ही पड़ेगा उनके यहाँ डेवलपमेंट करने के लिए। तो ये तो कहा ही गया है संघ क्या है, संघ राज्यों का एक बहुत बड़ा भाग होता है। संघ के अंदर ही सभी राज्य हैं, उनके परे किसी भी राज्य की कल्पना नहीं की जा सकती है। इसीलिए संघ की ड्यूटी बनती है, उसका अधिकार बनता है कि सभी राज्यों को लेकर चलना है और उनको समय समय पे अनुदान देना है, उनके राजस्व को बढ़ाने के लिए राज्य सरकारों को अनुदान भी देना है समय समय पे। तो ये इन अनुच्छेदों में यही कहा जा रहा है। तो कल के लिए, आज के लिए इतना ही। कल मिलती हूँ नए अनुच्छेद के साथ। जय भीम, जय संविधान, जय लोकतंत्र, जय भारत।